Okay, good morning, student. Today, our topic is the solar energy. Okay, the outline I told you about it that the uses of the solar energy, type of the solar energy by which we can use, and the applications of the solar energy. These all are the topic which we are going to discuss in this today's slide. Okay, so first of all, we should know about what is the solar energy. So as we know it very well that the solar indicates the sun. Okay, so sun is the ultimate source of energy, directly or indirectly, for all the forms of the energy which comes from the sun we can use as a solar. So name indicate the solar. Solar is directly proportional to the sun. So So when we talk about, so which kind of the phenomena basically indicate how we are getting this energy from the sun to the earth. So definitely we have a nuclear fusion reactions occurring in the sun, which releases enormous quantity of the energy in the form of the heat and light. Okay. So definitely we are experiencing the heat as well as the light, because with the help of the light that we are seeing most of the object around us, and the heat we can feel because of the body temperature is increasing. That's why we can say that the heat is being experienced by the body. Okay. So न्यूक्लियर फ्यूजन सॉरी एक रिएक्शन होती है जो सन के अंदर होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी एक एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एंड लाइट्स में. अगर मैं ये बात करूं कि हाउ मैनी और द हाउ मच क्वांटिटी दैट वी आर गेटिंग at the earth, that we are living on the earth planet, then definitely which kind of the energy and how much amount of the energy we are experiencing at the earth. So definitely I can say the solar energy received by the earth space is approximately 1.4 kilojoules per second per meter square, known as a solar constant. सो आप इस डेटा से समझ सकते हैं कि 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर की जो क्वांटिटी है, ये हीट की हमें मिलती है अर्थ सरफेस पर, जहाँ पे हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं और इसका हम इस्तेमाल करते हैं लाइट की तरह से और एक हीट की तरीके से. When we come to the traditionally, we have been using solar energy for drying clothes and food grains, preserve, uh, preserving of the eatables, and for obtaining salt from the sea water. Okay, so these are the basic fundamentals. कपड़े सुखाने के लिए, फूड ग्रेन्स को सुखाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ईटेबल चीज को, जितनी भी ईटेबल जो हमारे पास में खाने की जो चीजें हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, और अगर मुझे समुद्र से अपने नमक को निकालना है तब भी मुझे इस सोलर हीट की आवश्यकता पड़ेगी, मीन्स सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी. सो ये एक ट्रेडिशनल वे था जिसमें कि हम इसको इस्तेमाल करते थे, बट एज द रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, research increases, so definitely we are at a point where exactly we can convert this solar energy into the electrical or mechanical energy. I'll tell you how we are converting these. Okay, so this is all about the, so now we have a several techniques for harvesting, yeah, harnessing the solar energy. Some important solar energy harvesting devices are discussed, like solar heat collector, solar cell, solar cooker. So most of you know it very well. Okay, so let me discuss one by one. Solar energy, that we have example that the sun rays are coming from the sun because of the nuclear fusion reaction, and we are getting or experiencing the heat and light at the earth. So solar energy is the energy received by the earth from the sun. As I told you that we have a data that approximately 1.4 kilojoule per second per meter square heat we are experiencing, or the light we are experiencing at the earth's surface. So the energy is in the form of the solar radiation, which makes the production of the solar electricity possible. ट्रेडिशनल वे हमारा ये था कि कपड़े सुखाते थे हम लोग, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया सोलर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारी रिसर्च से पता लग पाया. और इस एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डेफिनेटली वी आर, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो वी विल टॉक अबाउट द इंडियन सिनेरियो और द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ इंडियन सिनेरियो. तो यहाँ जो सन की डेंसिटी है, हीट और लाइट की, सो we are experiencing a season in which we can use more and more heat. Okay. So type of solar energy. So basically अगर मैं सोलर एनर्जी के टाइप्स की बात करूं, तो यहाँ मुझे पैसिव सोलर एनर्जी हमारी हो सकती है, एक्टिव सोलर एनर्जी हमारे पास हो सकती है, फोटो वोल्टिक सोलर पावर हमारे पास हो सकता है,
solar thermal energy we can discuss in the concentrated solar power. Okay, so at when we are talking about the last topic, concentrated solar power, which is not comes under your syllabus, but still that we will have a basic idea about the concentrated solar power. So passive solar energy. What do you mean by passive solar energy? So passive solar energy is a method in which solar energy is harnessed in its direct form without using any mechanical devices. Means हम कोई किसी तरीके का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं कि सनरेज डायरेक्टली आई अर्थ के ऊपर हमारी, और जो हमारे पास में जितनी भी हीट या लाइट हमें मिली उसका हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। तो ये एक हमारी जो तरीका है वो हमारा है पैसिव सोलर एनर्जी का। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं दिन के टाइम में। अपने फूड ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो उनका यूज कर सकते हैं हम लोग, और अपने ईटेबल्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, और समुद्र में से हम नमक को निकाल सकते हैं। ये भी फिनोमिना हमारा पैसिव सोलर लर्निंग के अंडर ही आता है। So passive solar learning has a few applications which all of us can use wherever there is sunlight. क्या है कि दिन डे लाइट में हम रोज के और दिनचर्या के जितने भी काम है वो सारे के सारे हम कर सकते हैं। पैसिव सोलर हीटिंग है और पैसिव सोलर कूलिंग है। पैसिव सोलर हीटिंग का मतलब यही है कि पैसिव जो डायरेक्ट सनलाइट्स आ रही है हमारे पास में, आपको पता होगा कि पत्थर हमारे पास में दैट वी हैव स्टोन्स एंड ब्रिक्स। सो स्टोन एंड ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो जैसी सनलाइट और सनरेज इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये हीटअप हो जाता है। तो ये लेकिन थोड़ी देर के लिए ये हीटअप होगा, उसके बाद क्या रहता है कि ये फिर ठंडा हो जाता है। जैसे इसके पास से जो एयर हमारा पास होता है तो ये ठंडा हो जाता है। तो ये वो वाले सोलर हीट कलेक्टर्स हैं जो पैसिव फॉर्म में काम करते हैं कि थोड़ी देर के लिए गर्म हुए उसके बाद ठंडे हो गए, बट वी कैन यूज this energy which is stored by the stone and the bricks for the further use. For instant of time we can use it. So these can be passive or active in nature. So passive solar heat collector are natural materials like stones and bricks, etc. Okay, or material like glass which absorb heat during the daytime and release it slowly at night. Okay, as I told you, जब तक सनराइज रहेंगे तब तक तो ये गर्म रहेगा, और जैसे ही सनलाइट की डेंसिटी और इंटेंसिटी हमारी कम हो जाएगी, so definitely during the night time there is the intensity of the solar or the sun is very low, so at that time that it will slowly release the energy. So हम इन सोलर हीट कलेक्टर का इस्तेमाल पैसिव फॉर्म में ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम प्रिजर्व कर लें थोड़ी देर के लिए, और बाद में हम आप ऐसे एग्जांपल समझिएगा कि पत्थर बहुत सारे गर्म हो गए हमारे, उन गर्म पत्थर को अगर मैं पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहूँ तो एक जगह पे मैंने बहुत सारे पत्थर गर्म किए, घर के अंदर हमारा टब रखा हुआ है पानी का, हम उन पत्थर को उसके अंदर डाल दें तो थोड़ी देर बाद वो पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा, और उन पत्थर को निकाल के हम वापस फिर सनलाइट में रख देंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ट्रेडिशनली जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते थे इसी तरीके से। जैसे कि हमें पता लगता था कि हम सोलर हीट कलेक्टर और सोलर और पैसिव सोलर हीटिंग और पैसिव सोलर कूलिंग का हम यूज कैसे कर लेते हैं, ठीक है ना। देन वी हैव एक्टिव सोलर एनर्जी। एक्टिव सोलर एनर्जी से आपको सीधा सीधा ये समझ में आता है कि वही सोलर एनर्जी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो सनरेज डायरेक्ट हमारी अर्थ के ऊपर आ रही है, तो उनका इस्तेमाल हम फर्दर कैसे कर सकते हैं। लाइक अभी तक तो हमें ये पता लगा था कि स्टोन्स एंड ब्रिक्स ने हमारा एनर्जी और हीट को एब्जॉर्ब किया, और फर्दर और द फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब क्या कि अभी मैंने उसको एब्जॉर्ब करे हुए पत्थर को उठाया, और फ्यूचर मतलब आधे घंटे बाद भी अगर मैं किसी चीज को यूज कर रहा हूँ तो आई कैन से दैट वी आर यूजिंग दिस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फॉर द फ्यूचर यूज, बिकॉज इस इंस्टेंट पे मैंने उसको एज्यूम किया है लेकिन मैं थोड़ी देर बाद उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो थोड़ी देर का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो हमारा फ्यूचर कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर करता है। सो एक्टिव सोलर एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम यही कर रहे हैं कि उसी एनर्जी को जो सन से हमारी डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आ रही है उसको हम हार्नेस करेंगे, ठीक है ना, और उसका जो कन्वर्जन है फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेंगे। आज से पहले अगर मैं बात करूं तो हमें स्टार्टिंग में ये समझ में नहीं आता था कि सोलर एनर्जी जो आई है हमारी तो वो काम किस प्रकार से कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी रिसर्च बढ़ती गई हमें आज हम इस लेवल पर चले आए कि उसी एनर्जी को हम आज स्टोर करके कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं कैरी करके, लाइक बैटरी है आपकी, बैटरी बैंक के अंदर आपने एनर्जी को स्टोर किया और यू कैन ट्रैवल फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके,
सो ये एनर्जी का जो कन्वर्जन है फ्रॉम सोलर टू इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को आप लोगों ने अपने किसी भी पावर बैंक में या किसी बैटरी बैंक के अंदर सिक्योर कर लिया या प्रिजर्व कर लिया, और फ्यूचर में आप उसका यूज कर रहे हैं, और इवन वो ट्रांसपोर्ट भी हो पा रहा है। तो ये एक बड़ी रिसर्च है, और ये सोलर से इसमें बहुत बड़ा सोलर का योगदान है, क्योंकि सोलर वाली जो एनर्जी है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी है हमारी, बिकॉज इनपुट और इनिशियल कॉस्ट इज जीरो। ओके, so active solar energy employs mechanical or electrical equipment for functioning and increase system efficiency. Okay, as an example, water pumps are used to to circulate water through the active solar energy water heating system. सो हम क्या कर सकते हैं कि वाटर पंप को भी हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी। पर हमें करना क्या पड़ेगा कि वही जो सोलर एनर्जी थी हमारे पास में, वो फोटोवोल्टिक सेल पर जाएगी। हमारे फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर जाने के बाद उसका कन्वर्जन होगा, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी को हम किसी बैटरी बैंक में स्टोर करेंगे ताकि फ्यूचर में यूज कर पाए, और अगर नहीं भी हम उसको फ्यूचर में यूज कर पा रहे, तो सेम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई है हमारी सोलर लाइट की वजह से, हम उससे डायरेक्टली किसी पंप को ऑपरेट कर लेंगे और अपना जो डोमेस्टिक काम है उसको हम चला पाएंगे। ठीक है। सो सम एप्लीकेशंस ऑफ द एक्टिव सोलर एनर्जी विच कैन बी वेरी हेल्पफुल टू अस, दैट इज सोलर मतलब एक्टिव सोलर वाटर हीटिंग, एक्टिव सोलर पूल हीटिंग एंड एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग। तो इनसे समझ में आ रहा होगा कि वन बाय वन अगर मैं डिस्कस करूँ इसको, सो एक्टिव सोलर हीटिंग का मतलब यही है कि हम ऐसा कोई वाटर हीटिंग सिस्टम लगा रहे हैं जिससे कि सनराइज उसके ऊपर पड़ेगी, सनराइज उसके ऊपर पड़ने के बाद में उसके अंदर पानी जो है वो गर्म हो जाएगा हमारा। और सबसे बड़ा जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो हमारे स्विमिंग पूल के अंदर यूज होता है। स्विमिंग पूल के अंदर पानी को गर्म करने के लिए मैक्सिमम जगह पर लोग आज जो इस्तेमाल करते हैं तो वो सोलर हीटिंग को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है आपको। सनरेज आई है, सनरेज आने के बाद में उसका कन्वर्जन हुआ है और उससे हमने पानी को गर्म कर लिया है। एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग भी इसका एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बड़े लेवल पर हम पूरे स्पेस को हीट कर रहे हैं सोलर प्लेट की हेल्प से। सो आई टेल यू हाउ सोलर सेल्स आर वर्किंग, डोंट वरी। सोलर थर्मल एनर्जी भी हमारे पास में, थर्मल बिकॉज ऑफ द हीट। सो क्या कर रहे हैं हम कि सोलर थर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी derived from the ancient solar energy, that is sunlight. This is used by solar heating panels. आपको आवाज आ रही है ना बच्चों? ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर थर्मल एनर्जी। सो सोलर थर्मल एनर्जी इज अ हीट एनर्जी derived from the ancient solar energy, that is sunlight. तो थर्मल से इंडिकेशन मिलता है हमें कि जो भी हीट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारा का सारा क्या है, हमारा थर्मल है। और हीट कब मिलेगी हमें, जब हमारा संदेश हमारे पास पहुंचेगा। और उसकी मैंने बता दी थी आपको कि 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर वो होता है। तो दिस इज यूज फॉर द सोलर हीटिंग पैनल्स। तो पैनल्स हैं हमारे पास में, सोलर पैनल्स हैं, तो उनको हीट करेंगे जब, और हीट जब होगा तो वहां पे थर्मल जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। यस, यू कैन गेस इट राइट। Solar thermal energy does have more advantages like other form of solar energy. क्या कर सकते हैं हम उससे? सोलर वाटर हीटिंग कर सकते हैं, सोलर पूल हीटिंग कर सकते हैं, सोलर स्पेस हीटिंग हम लोग कर सकते हैं उससे। So these are the common use of the solar thermal energy. By taking advantages of these, you can get plenty of benefits. Means number of benefits you can get with the help of the solar thermal energy. So electricity can be generated using solar thermal energy. Commonly, this is known as solar thermal electricity. Okay. Now come to the most important point, that is the photovoltaic energy. Okay. सो फोटोवोल्टिक से आपको समझ में आया होगा कि फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब हीट, हीट मतलब थर्मल। तो इसमें क्या रहता है बेसिकली, हमारे पास में बोरोन या सिलिकॉन का हम यूज करते हैं, यानी इसकी हम कोटिंग करेंगे। ठीक है। एक हमारे पास में लाइक एग्जांपल है, हमारे पास में एक किसी भी घर की जो बाउल होता है, कटोरा, उसका हम एग्जांपल लेते हैं।
तो बाउल टाइप के सोलर सेल्स हमारे पास में रहेंगे, जिसके इंटरनल हम अगर उसकी कोटिंग की बात करें तो बोरोन या सिलिकॉन से हम उसकी कोटिंग कर देंगे। और मैक्सिमम टाइम हम जो यूज करते हैं वो सिलिकॉन यूज करते हैं। सिलिकॉन को यूज करने की वजह सीधी 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 यही है कि इसका एक तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट। दूसरी चीज क्या है कि ये नेचर में इजीली अवेलेबल है, और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये इनएक्सपेंसिव है, इसमें ज्यादा खर्चा हमें नहीं लगेगा यूज करने के लिए। सो अगर मैं सोलर सेल्स की बात करूं, सो वी हैव ए गुड एग्जांपल। सो लेट मी टेल यू और डेमोस्ट्रेट दी। This is basically the solar cells, or we can say in the bracket there is a PV cells. PV cells means photovoltaic cell. इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दैट वी आर बोरोन एंड रिच सिलिकॉन हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड द एट द आउटर सरफेस वी आर यूजिंग द फॉस्फोरस अनरिच सिलिकॉन। सो इंटरनल अगर डायग्राम की बात करो तो दैट वी आर यूजिंग द सिलिकॉन बट विच इज एनरिच्ड विद द बोरोन, बट आउटर सरफेस इज सिलिकॉन बट एनरिच्ड विद द फास्फोरस। So they are also known as the photovoltaic cell, that is PV cells. So solar cells are made of thin wafer of semiconductor materials like silicon and germanium. ये सिलिकॉन का भी हो सकता है या वो जर्मेनियम का भी हो सकता है, बट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। तो आपके पास क्या चीजें अवेलेबल है। व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन देम, जब सोलर रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा, ये जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं दैट सोलर रेडिएशन इज फॉल ऑन दी बोरोन एनरिच्ड सिलिकॉन। ओके, सो व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल ऑन इट, व्हाट हैपन, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड। क्यों हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? कि ऊपर की तरफ हम बोरोन यूज कर रहे हैं, नीचे की तरफ हम फास्फोरस यूज कर रहे हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड विच कॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही, कि जैसे ही हम इसके ऊपर हमारा सोलर रेडिएशन गिरेगा या यूवी रेज टकराएंगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से कि इट विल फोर्स और इट विल कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सिलिका और सैंड। सैंड मतलब धूल मिट्टी जो भी या रेत आपके पास में है, उसकी हेल्प से आप सिलिकॉन को ले सकते हैं। So which is abundantly available and inexpensive. Okay, but by using a germanium arsenide, अगर हम जर्मेनियम आर्सेनाइड यूज कर लें या कैडमियम सल्फाइड यूज कर लें या हम बोरोन यूज कर लें, तो एफिशिएंसी हम उसकी बढ़ा पाएंगे पीवी सेल्स की। सो वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द पीवी सेल बाय यूजिंग द गैलेनियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड और बोरोन। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि कितने बाई कितने का, जो बेसिक और लेमन लैंग्वेज है कि कितने बाई कितने की एक पीवी सेल से हम कितनी एनर्जी को या कितने करंट को या वोल्टेज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसका एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि इफ वी हैव अ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज का जो पीवी सेल है, वो अगर हमारे पास में है, तो उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं वो हम समझ सकते हैं। एक मिनट। जैसे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज का कोई पीवी सेल हमारे पास में है, तो इट विल प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 0.4 टू 0.5 वोल्ट ऑफ द voltage and approximately 60 milliampere current by which we can produce. So according to your requirements, so how many current or the voltage you required, you can use the solar plate. Okay, but this is a basic phenomena कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज का अगर कोई सोलर प्लेट या सोलर पैनल या पीवी सेल आपके पास में रहेगा, सो इट विल प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 0.4 टू 0.5 वोल्ट ऑफ द वोल्टेज एंड अप्रोक्सीमेटली 60 मिली एम्पियर ऑफ द करंट। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो था सोलर रेडिएशन के ऊपर गिरा, फॉल हुआ, बोरोन एंड सिलिकॉन था हमारे पास में, फास्फोरस हमारे पास में था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ और जिसकी वजह से वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। इट इज दो वायर आपको दिख रही होंगी, दो वायर आप डीसी इलेक्ट्रिसिटी से आपने कनेक्ट कर लिया है कि जो एनर्जी यहाँ से आपको मिली, आपने उसे डीसी में स्टोर कर लिया, और डीसी में जब आपने स्टोर कर लिया उसके बाद आपने कोई इलेक्ट्रिक बल्ब आपने जला लिया वहां पर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोवोल्टिक एनर्जी। ओके,
ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक है अगर आप ये देखना चाहें, अ सोलर पंप रन बाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय अ सोलर सेल। तो यहाँ इसमें क्या किया है हमने, एक एक टावर हमने स्टैब्लिश किया, उस टावर के ऊपर हमने बहुत सारे पीवी सेल्स को लगा दिया, ग्रुप ऑफ सोलर सेल ज्वाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट पैटर्न फॉर्म अ सोलर पैनल। अगर सोलर पैनल आपको कहीं देखने को मिलता है तो आप उस सोलर पैनल पे देख सकते हैं कि इंटरनल यानी कि उस जो ग्लास की कोटिंग होती है, उस ग्लास की कोटिंग के एकदम नीचे बहुत सारे पीवी सेल्स उसमें लगे होते हैं, बट दे ऑल आर ज्वाइंट टुगेदर बट इन अ डेफिनेट पैटर्न। Okay, so by which we can harness a large amount of solar energy and can produce electricity which can run a street light, irrigation, the water pump, etc. As we have an example. So starting में हमें दिख रहा है कि एक सोलर रेडिएशन इसके ऊपर जा रहा है, एक सोलर पैनल हमने लगाया है, इसके अंदर सोलर पैनल के अंदर सोलर सेल्स लगे हुए हैं। वही सोलर सेल हमारे डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उसका जो कनेक्शन है हमने बैटरी के साथ किया है, बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद में जो बैटरी में हम स्टोर करेंगे, देन वी हैव इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को हम ऑपरेट कर रहे हैं और उससे हम वाटर पंप चला रहे हैं जो कि इरिगेशन में यूज होता है। तो ये बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल भी सकता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और सोलर सेल आर वाइडली यूज इन द कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर का एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, आपके पास जो भी कैलकुलेटर होते हैं 82x हो या 100mx हो, इन सारों को अगर आप देखोगे तो उस पर एक ब्लैक कलर की जो लाइनें बनी होती है उसके ऊपर, तो वो पूरा का पूरा सोलर पैनल होता है। तो यूजुअली जब उसकी बैटरी थोड़ी सी डल हो जाती है तो आप उसको सनरेज में या धूप में रख देते हैं ताकि वो चार्ज हो जाए वापस। वो जब चार्ज हो जाएगा तो उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी में चार्ज स्टोर होगा, वही चार्ज वापस आपके कैलकुलेटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होने लगेगा। तो एक अच्छा और बेसिक एग्जांपल है जो कि हम डेली यूजेस में करते हैं। तो इट्स अ गुड एप्लीकेशन बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ द सोलर पैनल। और सिग्नल ट्रैफिक्स में यूज होता है। हम पहले समझते थे, आप लोगों ने भी शायद कभी ध्यान दिया हो, कि ये जो लाइट लगी हुई है स्ट्रीट लाइट्स, इनको जलाता कौन है, इनको बंद कौन करता है। बट बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सोलर एनर्जी से वो चार्ज होती है, बैटरी उसके साथ कनेक्ट होती है और साथ में उसके एलडीआर लगा होता है। एलडीआर इज ए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जैसे ही थोड़ी सी अंधेरा होने लगेगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर अपना काम करेगा, इट विल वर्क एज ए स्विच। लाइट डिपेंडेंट है, वो लाइट पे डिपेंड करता है, तो जैसे ही वो अपना स्विच की तरह काम करेगा तो लाइट मेरी ऑन हो जाएगी। और जैसे ही दिन में थोड़ा सा मेरे पास सनरेज आएंगी या कोई लाइट या कोई भी किसी भी तरीके का प्रकाश हम लोग जनरेट करेंगे, तो इट विल डीएक्टिवेट और वो अपना काम करेगा और लाइट जो उससे कनेक्ट की हमने वो बंद हो जाएगा। आप लोग शायद अवेयर होंगे ना एलडीआर से। एलडीआर सुना है आप लोगों ने? एलडीआर एक, एक, एक बहुत अच्छा वो है एलडीआर, जिसके हेल्प से हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर है हमारे पास में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है सोलर कुकर का, जो शायद आप लोगों ने देखा भी हो, किसी के घर में शायद हो भी है आज। तो ये ट्रेडिशनली हम लोग यूज करते थे सोलर कुकर का। इसमें क्या रहता है, सोलर कुकर में एक ब्रीफकेस टाइप का ये होता है। ब्रीफकेस टाइप में हम जब उसके ब्रीफकेस को ओपन करते हैं तो ऊपर वाला जो स्पेस होगा ब्रीफकेस का, वो पूरा का पूरा मिरर कोटिंग होती है उसमें, प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है हमारा, वो एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है बेसिकली। तो सोलर रेडिएशन जैसे ही हमारे उस प्लेन रिफ्लेक्टर या प्लेन मिरर के ऊपर जाएगा तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक दिस मतलब सनरेज ऑफ द रेडिएशन टू दी कंसंट्रेटेड ब्लैक एंड मेटेलिक बॉक्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा कि एक इनसाइड दी ब्लैक एंड मेटेलिक बॉक्स हम लोगों ने यूज किया है, और दूसरा भी हमारा एक ब्लैक एंड मेटेलिक कंटेनर है फॉर कुकिंग दी फूड। तो मोटिव क्या है इनका कि जैसे सनरेज हमारी आई तो कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब हम जो ये यूज करते हैं बाउल टाइप का या बॉक्स, इसमें ना सेंटर पॉइंट पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है हमारे इसका लाइट का। तो प्लेन मिरर से टकराने के बाद में वो सारा संदेश एक जगह कंसंट्रेट होगा और जितना भी खाना या जो भी चीज़ हमने लिक्विड हमने उसमें रखा है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो माइट बी यू हैव सीन समवेयर एल्स और यू आर यूजिंग इट, बिकॉज ट्रेडिशनली हम लोग यूज करते थे इसको, ठीक है।
हाँ हाँ। सो कंसेंट्रेटेड सोलर एनर्जी अपने आप को अपने आप में इंडिकेट करती है कि इसका क्या मतलब रह सकता है। अगर मैं कंसेंट्रेटेड की बात करूं तो इससे मैं सीधा सीधा समझ में आता है कि दैट एट अ सर्टेन पॉइंट वी आर कंसेंट्रेटिंग दिस टोटल सोलर एनर्जी एट अ सिंगल पॉइंट। सो इसका मतलब है कंसेंट्रेटेड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसका, बट बिफोर इट लेट मी डिस्कस अबाउट दी सोलर वाटर हीटर। ये क्या होता है? तो सोलर वाटर हीटर की जब मैं बात करता हूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ ए इंसुलेटेड बॉक्स पेंटेड ब्लैक फ्रॉम द इनसाइड एंड having a glass lid to receive and store the solar heat. Inside the box, it has a black paint copper coil through which cold water is made to flow in. Okay, तो बाहर की तरफ हमने क्या कर दिया है, इसमें ब्लैक कलर की कोटिंग कर दी है जिसमें कि एक पाइप लगाया है और कॉपर की कोयल इसके अंदर यूज की है, in which we are using the cold water which made to flow in, which gets heated and flow out in a storage tank. The hot water from the storage tank filled on the top rooftop, then supplied through the pipeline into the building like the hotel and the hospitals and hostels. हमारे यहाँ तुलास के हॉस्टल में भी अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे सोलर वाटर हीटर का यूज़ किया गया है छत के ऊपर, जिनका जो बड़ा फ़ायदा बच्चे वहाँ पे ले रहे हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है। सोलर फर्नेस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सोलर फर्नेस भी एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है इसका। थाउजेंड ऑफ स्मॉल प्लेन मिरर आर अरेंज इन कॉनकेव रिफ्लेक्टर। कॉनकेव रिफ्लेक्टर के फॉर्म में हम बहुत सारे जो मिरर हैं उनको हम रख लेते हैं और ये सारे के सारे कलेक्ट करेंगे उस सोलर रेडिएशन को, और हीट जो मिलेगी हमें वो एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें मिल जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो सोलर फर्नेस भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो मेन मोटिव यही है कि अगर आप घर में भी इसको एक्सपीरियंस करना चाहें तो 15-20 छोटे छोटे ग्लास और मिरर आप लोग लेके अगर उन्हें इस तरीके से लगाएं कि सोलर रेडिएशन का जो पैटर्न है उनको डायरेक्टली फॉल हो, और वो बीच में उसके एक बाउल रख दो आप, ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है टोटल एक बाउल की तरफ चला जाए। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो बाउल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सोलर फर्नेस का, या किसी भी ऐसे कंसंट्रेटेड सोलर पैनल का जिसके थ्रू हम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और सोलर पावर प्लांट हम लोग यूज कर रहे हैं आज की तारीख में। सो सोलर एनर्जी इज हार्नेस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय यूजिंग कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ओके, विच कॉजिंग बॉइलिंग ऑफ द वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। तो सोलर वाटर प्लांट में हम क्या कर रहे हैं कि कॉनकेव रिफ्लेक्टर का यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम पानी को गर्म करते हैं, तो इट विल प्रोड्यूस स्टीम एंड स्टीम विल टर्न अ टर्बाइन और ड्राइव अ टर्बाइन विच इज कनेक्टेड टू द जनरेटर विच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे भी हमें पता लग सकता है कि बेसिकली सोलर वाटर प्लांट जो है वो हमारा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैं भी एग्जांपल दूंगा आपको। ये है हमारा सोलर कंसंट्रेटेड power. So concentrated solar power is a branch of solar thermal energy which is used to generate solar power electricity. Okay. So electricity is produced on a large scale by using this technology. This technology is not in either of our scope, but still that we have to idea, or we have to get the idea about it. We have a diagram by which you can see this is basically these are the example of concentrated power towers. ओके, तो इनमें हमने क्या किया कि इसका जो नेचर है थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, और ये कॉन्केव रिफ्लेक्टर की फॉर्म में है। तो सनरेज जैसे ही इसके ऊपर फॉल होगी तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो सेंटर में आ जाएगा, और सेंटर में आने की वजह से इसके थ्रू या इसके साथ में जो पाइप या कुछ भी चीज़ हमने कनेक्ट की है तो उसमें अगर हम पानी को पास करते हैं तो इट विल स्टार्ट हीटिंग। ठीक है, और ये एक सोलर पावर टावर है, ये देखिएगा। ये इतने जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं सारे के सारे आपके मिरर्स हैं, और ये मिरर सारे के सारे हमने एक तरफ कंसंट्रेट किए हैं ताकि इनसे आपका जो सोलर फाल इसके ऊपर सोलर रेडिएशन जब इसके ऊपर फॉल होगा तो उनका कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही तरफ रहे।
और टावर एक लगा होगा, टावर जब लगा रहेगा तो वो पूरा का पूरा एनर्जी उस टावर पर जाएगी, वो टावर उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो फिर उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है सोलर पावर टावर का। तो इसकी हेल्प से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो हाउ सोलर पैनल्स आर मेड। So solar world manufactured solar panel entirely in the USA from the raw of silicon to complete solar panel. So maximum अगर मैं यूज करने की बात करूं कि सोलर पैनल बनते किस चीज से हैं, तो वो हमारे सिर्फ सिलिकॉन से ही प्रिफर किया जाता है। बिकॉज जर्मेनियम जो है वो प्रिफरेबल नहीं है, एक तो इजीली अवेलेबल नहीं है और दूसरा ये है कि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं आता। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स फोर मेन स्टेप। पहला हो सकता है हमारे पास में क्रिस्टल ग्रोइंग, दूसरा है वेफर। आप लोग क्रिस्टल ग्रो करते हैं एमएसजी से ईएसजी में, यानी कि मेटेलिकल ग्रेडेड सिलिकॉन जो होता है हमारा, उसको इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडेड सिलिकॉन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप वीएलएसआई टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सिलिकॉन जो सैंड से आपको मिल रहा है तो उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। फिर वेफर हम उसका कैसे बनाते हैं। फिर सोलर सेल प्रोडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि सोलर सेल उससे कैसे बना रहे हो, और सोलर पैनल असेंबली यानी कि उन सबको हम आपस में जोड़ते कैसे हैं। एक बेसिक लैंटर्न या लैंप की अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट में अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 400 रुपीज़ है, तो वो उसको बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है। सो कॉस्ट फॉर मेकिंग द सोलर पैनल बाय विच यू कैन मेक लैंटर्न। तो क्या हो सकता है कि सोलर पैनल अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज़ का, क्योंकि जितनी उसको एनर्जी चाहिए एलईडी लाइट को उसको बनाने के लिए, जो सोलर पैनल हमें चाहिए, तो उसकी जो विड्थ और लेंथ रहेगी उसके हिसाब से उसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी रहेगी, 150 रुपीज़। बैटरी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अप्रोक्स 80 रुपीज़ की आएगी। एलईडी बल्ब हम लोग 50 रुपीज़ के यूज़ कर सकते हैं। सर्किट कंपोनेंट अप्रोक्सीमेटली 60 रुपीज़। और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी 10 रुपीज़। एंड एनक्लोजर्स जो उसमें और छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं 35 रुपीज़। एंड असेंबली की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़। सो अप्रोक्सीमेटली इट विल कॉस्ट यू 400 रुपीज़ टू मैन्युफैक्चरिंग अ लैंटर्न। तो इस लैंटर्न का सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि आप सोलर से इसको चार्ज करेंगे, बैटरी में इलेक्ट्रिक वो जो चार्ज है हमारा वो स्टोर हो जाएगा और उसको नाइट में आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये बस 400 रुपीज़ की इनिशियल कॉस्ट के बाद में आपको फ्री में वो आपको जो है लाइट देता रहेगा। ठीक है ना, तो सोलर पैनल का ये सबसे बड़ा फायदा है। डे लाइट यानी कि डे टाइम में शीशे सुखाने, आपको छत सुखानी है, कपड़े सुखाने हैं, तो आप इनको पैसिव सोलर हीटर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव सोलर हीटर ये सारे के सारे हैं, चाहे वो सब फ्लैट प्लेट कलेक्टर हो या इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर हो। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर बेसिकली हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें पानी को गर्म करना होता है छत के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर ये जो ट्यूब्स होती हैं इनसे पानी पास होता है। पानी पास होता है तो वो कंसंट्रेशन हीट का ज़्यादा होने की वजह से वो पानी हमारा गर्म हो जाता है और हमें फिर गर्म पानी मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कंसंट्रेटिंग सोलर पैनल हमारा क्या होता है, और पावर टावर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ द सोलर एनर्जी। So all chemical and radioactive polluting byproducts of the thermonuclear reactions remains behind on the sun. Definitely, the dependency of all the byproduct and the chemical or radioactive pollutant is basically onto the sun. So while only pure radiant energy reaches the earth. Okay, so energy reaching the earth is incredible. So by one calculation, 30 days of sunlight striking the earth have the energy which is equivalent to of the total of all the planet's fossil fuels, both used and unused. So हम ये कह सकते हैं कि जितना भी फॉसिल फ्यूल हमारे पास पूरे प्लेनेट पे पड़ा हुआ है, अगर 30 दिन की सनलाइट की एनर्जी कंटिन्यूसली हमारे पास में आ जाए तो इतना
हम लोग एनर्जी उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना कि हम सारे के सारे फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो सन डज नॉट शाइन कंसिस्टेंटली, लगातार नहीं चल रहा है। रात में उसका जो हीट है वो कम हो जाती है, तो हम सन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से हीट और लाइट हमें नहीं मिल पाती। तो उस वक्त हमारा सोलर जो सेल है वो काम नहीं करेगा। Solar energy is a diffuse source, so to harness it, we have to concentrate it into a account to form that we can use, such as heat and electricity. So जैसे कि एक diffuse source है कि जब तक सन रहेगा तब तक आपको heat या light मिलेगी, और जैसे ही सन चला जाएगा तो ये चीजें भी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें because of the diffuse nature of the sun, so we have to harness this heat or the light to the DC and some more elements, so that we can use this in future. So addressed by approaching the problem through so collection, conversion and storage. एक तो कलेक्ट करना इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, फिर इसका कन्वर्जन करना भी टफ है, और इसको स्टोरेज करना भी। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम कंबाइन कर लें तो यही इसका एक इनिशियल कॉस्ट होता है कि हमें कलेक्ट करना है बिकॉज ऑफ द सोलर पैनल, कन्वर्ट करना है फोटोवोल्टिक सेल की वजह से, और स्टोर करना है डीसी की वजह से, डीसी बैटरीज की वजह से। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं तो वी कैन बी एट द कॉस्ट ऑफ this collection, conversion and storage, so we can use the energy produced by the sun for the future use. Okay, so thank you so much. This is all for today, and if you have any confusion you can discuss or you can message. Thank you so much, student.